initial composition. Okay, so generally it's follows by start, initial composition, okay, sorry, recomposition, okay, and then uh, leave the sector. Okay, so in our next class we're gonna discuss about this recomposition in a lot more detail, but for today it is important to understand how a composable works. Okay, now uh, I'm gonna write a program. Okay, so it's an hello android program. Okay, now I will create few composables. Okay, I will create a composable. I will name it as change container color. Okay, now मैं क्या करूँगा? I will create a column. Okay, uh, I will create a box. Okay, I will give it a modifier dot size of 100 dp. Okay, and will max width. Okay, and I will give it a background color of, let's say, color dot red. Okay, now with one spacer. Okay, modifier dot height, let's say 8 dot dp. Okay, यहाँ पे मेरे को मॉडिफायर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम दिस argument I'm already getting. Okay, now I will create a button. Okay, and on click I will do some operation later, but I will call it a button with the name change color. Okay, something like this. Okay, now I will call this uh, change color container with the modifier. Okay, I will create a new modifier with a padding of inner line padding. Okay, let's repeat this. Okay, this look like this. Okay, uh, as we learned yesterday that the order of a modifier how we provide generally change the outcome. Okay, so it generally look like this. Okay, now just don't go on the UI. Okay, try to understand the working. Okay, now मैं क्या करूँगा? I will create a variable. I will say change color flag of type boolean. Okay, I will give it a default value false. Okay, and in the background मैं बोलूँगा कि if the color is true show the red part. Okay, else show me the color dot blue. Okay, now it is saying always be false. Okay, so what we gonna do, we do change color and I will make it something like this. Okay, अब I'm gonna run this code. Okay, initially the value was false, so इसने blue color ले लिया. Right now अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा और इस चेंज कलर की वैल्यू चेंज होएगी. ओके, so what will happen? क्या ये कलर रेड हो जाएगा इस कंटेनर में? अच्छा, सॉरी, पहले मेरे को ये बताना कि जस्ट सेकेंड appearance font, मे भी आप लोग को ये बहुत छोटा दिख रहा होगा ना, राइट? पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा. जस्ट अ सेकेंड.
माई क्वेश्चन वॉज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ओके। इस वेरिएबल के बेसिस पे मैं इस कंटेनर को कलर दे रहा हूँ, ओके। और एक बटन बनाया है जिसके क्लिक में मैं चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, राइट। जनरली रिवर्ट कर रहा हूँ, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, राइट। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, राइट। नाउ अब मैं इसको हिट करूँगा ना, you can see the color is not changing. Can anybody guess why so? Apart from Harsh? Cool, cool. So, Harsh, you want to give the answer? Hello guys, am I audible? Sir, because the state is not changing. State is not changing. अच्छा, let's do one thing. यहाँ ब्रेक क्यों लगाया, यहाँ ब्रेक क्यों लगाया, यहाँ ब्रेक क्यों लगाया, ओके। मैंने इसको फिर से रन किया, okay. Now the code is at this variable, okay. मैं यहाँ आया, okay. The code, this color of the value of this boolean is false, okay. And it's start calculating. Now मैं इस बटन में क्लिक करूँगा तो ये वाला चीज़ कॉल होगा, ओके। मैं इसको क्लिक किया, ओके। नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू इवेल्युएट करूँ, ओके, इफ आई डू द इवेल्युएट पार्ट, यू कैन सी इट इज शोइंग मी ट्रू, ओके। तो स्टेट तो अपडेट हो रहा है, बट कलर क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? हर्ष? सर क्योंकि वो जो बॉक्स है कलर वाला वो रिमेम्बर नहीं कर रहा है ना कि वो कौन से कलर में था। करेक्ट, करेक्ट, cool, okay. So for those who have not heard of term remember, okay, जनरली हो क्या रहा है, जब मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ ना, ओके, तो इस कंपोजिबल में ये जो आप मेथड देख रहे हो ना, ये जो मेथड, ओके, ये रिकम्पोज नहीं कर रहा है, ओके। मतलब फिर से इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, एक बार ये स्टैटिक हो गया है, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू चेंज दैट, हम चाहते हैं कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन थिंग्स गेट re-render again, we have to make some changes, okay. So for that we have remember APIs, okay. So uh, how will it look like, हमें क्या करना पड़ेगा, we have to make it something like this, okay. I have to keep this something like this, okay. And I have to make it something like this, okay. The issue, okay, something like this, okay. This can be changed to y, okay. अभी क्या हुआ, I will let you know, okay. So I will just close this app, I will run it again, okay. The initial color is blue, I will tap on this change color method, and you can see now with the introduction of this remember functionality, if I do uh, change the state, the color is starting to reflect over the UI, okay. So इसका explanation I will give you in a detail, okay. So ये हमारा बॉक्स था, okay. अच्छा, बिफोर मूविंग टू डेट, मैंने कंपोजेबल का लाइफ साइकिल बताया था, तो आर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपोजेबल का लाइफ साइकिल क्या था, लाइक दिस वन, अपार्ट फ्रॉम हर्ष। सी अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव दिस साइन अप, ओके, दिस साइन टू गिव. The whole point is कि we will only move forward and only when we'll make have a base understanding. Cool. Assuming कि ये चीज़ हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, ओके, I will show you by drawing. Okay, just to think, just to keep things very simple, I am just taking a composable which is of a box, okay, have a color green, okay. Now जब हम ऐप को इन्फ्लेट करते हैं, ओके, जब हम ऐप चलाते हैं, ओके, विल गिव इट द कलर ट्रांसपेरेंट, ओके, जब हम ऐप चलाते हैं, ओके, द जेटपैक कंपोज की कंपोज में whatever things have been provided, based on that the things get inflated, okay. So अगर मैं इसका कॉपी बनाऊँ यहाँ डालूँ तो initially for the first time thing will work like this, okay. Now if I create a button, let's say blue color total use करके, let's say this color, okay, मैं बटन में क्लिक किया, ओके, जैसे ही मैंने बटन में क्लिक किया, ओके, internally I am changing a state, okay. State is nothing but a data, okay, that is being consumed by the respective composable, okay. So in our state, in our case, the state is boolean value, okay, uh, color change boolean variable is our state to time string, okay, which is of type boolean, okay, जिसकी initial value false है, okay. Now जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, okay, initially at the zero condition, okay, initially जब ऐप लॉन्च हुआ, okay, तो whatever composable we have provided and whatever the default value have given, based on that the composable has been inflated, okay. Now जब मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, okay, the action number 1 happens, okay, और इस ऑन क्लिक के मेथड में मैं इस वेरिएबल को मैं फॉल्स से ट्रू कर दे रहा हूँ, ओके, ओके, and we know that this variable internally is getting used by this composable, okay, and its value changes from false to true. तो जो कंपाइलर होता है ना, वो क्या करता है, like this अभी मान लो ये रेड है, ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, इस जब इस कंपोजेबल को दिस इनिशियली दिस वन, इसको जब एक नया वैल्यू मिलता है फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू, तो कंपाइलर क्या करता है, इस कंपोजेबल को वॉट एवर द कंपोजेबल वी आर सीइंग, ओके, दिस कंपोजेबल को वो फिर से रेंडर करता है, ओके. ये कंपोजेबल नहीं रेंडर होता है, रिकम्पोज नहीं होता है, ओके, नो रिकम्पोजिशन हियर, ओके, एंड no decomposition for the button, okay, no decomposition को समझ सकते हो, rendering, okay. What get rendered is this thing, okay, the decomposition. क्यों? क्योंकि whatever the state we are changing through this variable, okay, is getting consumed by this box composable, ओके. तो मैंने जब भी इस वैल्यू को चेंज किया, ओके, दिस वैल्यू गेट रिकम्पोज, और जब ये फिर से चलती है तो उसने देखा कि हाँ, इफ नाउ द कंडीशन हैव बीन ट्रू, तो द कलर रेड हैज बीन सेट, ओके. तो इफ आई चेंज इट नाउ, अगेन द रिकम्पोजिशन हैपन, ये बॉक्स फिर से कॉल हुआ, स्पेसर कॉल नहीं हुआ, बटन कॉल नहीं हुआ,
क्योंकि ये इसको कंज्यूम नहीं कर रहे, दे आर जस्ट चेंजिंग इट ऑन द लैम्डा। ओके, तो लैम्डा के अंदर चीज़ें डिफरेंट रहती है। करेंटली आई एम यूजिंग इट ऑन द प्रॉपर्टी। ओके, so whenever I change the value, this get false and this thing get compose again with the color blue। okay, जब इनिशियली हम लोग जब ये करते थे, इसको 2 मिनट कमेंट कर देता हूँ मैं। ओके, इनिशियली जब अपन ये कर रहे थे, बार चेंज कलर फ्लैग ऑफ टाइप boolean इक्वल टू फॉल्स। ओके, जब हम लोग ये कर रहे थे ना, तो इनफैक्ट दिस boolean वैल्यू का फ्लैग चेंज हो रहा था, but it doesn't give orders to the composable trees to get recomposed। okay, in order to make a recomposition happen, हमें ये syntax लिखना पड़ता है। okay, which is generally nothing but it is saying कि whenever this thing get called again, this composable get called again, आप इस वैल्यू को रिमेंबर कर लो। ओके, थ्रू आउट द कंपोजिशन, एंड जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू है जो भी हमने सेट की है उसको आप इस्तेमाल कर लो, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डू द रिकम्पोजिशन। So are we able to understand this basic thing of composition states in Jetpack Compose? Darshini, okay. Bhavyansh, Raj, are we able to get the working of Jetpack Compose? Assuming Raj is AFK, Raj, if you are listening, you can please react with an emoji. Cool. I assume Raj is AFK. Cool. So rest of the people, are we able to understand it? हमें क्या रिकम्पोजिशन लाइफ साइकिल समझ में आया? क्या हमें समझ में आया कि रिमेंबर हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? Okay, what about others? Cool. Okay, now whatever we have learned so far is the base of Jetpack Compose। okay, जैसे हमने एक चीज़ एक एक कंपोजेबल का हमने अभी स्टेट बनाया है। when we move forward, ये things will get complicated। okay, and we will be learning how to manage those states efficiently। okay, so moving forward, whenever we use the remember API, generally it pass the state of the recomposition। okay, वो चेंज नहीं होता है, it generally save and memorize the value of that variable, and जब भी दूसरे composables recompose होते हैं, it takes the latest value and react towards it। okay, so all in all, Jetpack Compose is a reactive, I will say explicitly, uh, basically reactive type of framework which based on states change it automatically। okay, uh, basically I think the word was implicit Jetpack Compose। डिक्लेरेटिव, नो नो, हाँ, अगेन वी कैन से डिक्लेरेटिव, बट मतलब आ, हमें उसको बताना नहीं पड़ता है कि भाई स्टेट चेंज हो गई है तो चेंज हो जा। हम जब स्टेट चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली कंपोज उसको ऑब्जर्व करता है और चेंज हो जाता है। ओके, so we don't have to do it manually। okay, so why I'm telling you that जब
जब हम XML इस्तेमाल करते थे, ओके, जब हम टेक्स्ट व्यू बटन्स ऐसे बनाते थे, तो जब भी हम टेक्स्ट में कुछ चीज़ जब भी यूज़र टेक्स्ट में कुछ वैल्यूज़ डालता था, तो हमें एक्सप्लिसिटली उसको चेंज करना पड़ता था अपने यूआई में। वी हैव टू मेक सम चेंजेस टू डू सो, ओके? बट विद द Jetpack Compose, इट इज़ नॉट दैट थिंग रिक्वायर्ड नाउ। हमने इसको एक स्टेट दे दी, ओके, एंड व्हेनेवर वी चेंज द स्टेट, द Jetpack Compose is smart enough to recompose itself and update to the latest state provided by the user or by our program, okay. So once you keep practicing it, once you keep making use of states, okay, you will get more hang of it, okay. Now this remember things come from compose runtime only, okay. So uh, this come whenever you create a new project, okay, you will get this remember uh, lambda, and inside it you can do various state handling, okay. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहूँ तो मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ, ओके, वॉट एवर आई कैन प्रोवाइड इट एनी वैल्यू, ओके. फॉर टाइम बीन आई प्रोवाइडेड boolean. If you want you can provide create of type string, you can create of type int, okay. It's up to your choice, your requirement, because this is a generic, okay, and we can provide it as per our need. Initially this false is the initial value of this state, okay, and generally we create a state, okay, inside the remember block, okay. Now if I type remember, okay, आपको ऐसे बहुत सारे मेथड्स इनबिल्ट आपको मिलेंगे, ओके, विच विल हेल्प यू टू मेंटेन स्टेट ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ओके. जैसे मान लो आपको ड्रॉर्स का स्टेट मेंटेन करना है, ओके, आपको कितना आपका कंटेंट स्क्रॉल हो गया है उसको मेंटेन करना है, ओके, आपको uh, uh, एक कोरूटीन, हाँ, आपको कोरूटीन स्कोप को अगर मेंटेन करना है कि विद इन दैट स्कोप समथिंग विल हैपन, सो वी कैन ऑलवेज यूज दिस हैंडी मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द Jetpack Compose फ्रेमवर्क ओनली, ओके. अब रिमेंबर कोरूटीन स्कोप क्या है, वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन अवर अपकमिंग सेशंस, ओके. For time being, we will only be using this remember API, where we will be using this mutable state of uh, uh, function with some initial value, okay, and because it is a mutable, we can always change it at the runtime, okay. Cool. I hope till now we are good. uh, हमने सीखा कि Jetpack Compose डिकम्पोज कैसे करते हैं, हमने सीखा कि स्टेट मेंटेन कैसे करते हैं, राइट. आर वी गुड टिल हियर? Cool. Now we will see a great feature by Kotlin, okay, which are called delegates, okay. If I go to here, uh, delegation. So basically, delegation uh, is a way where we can by providing few things we can delegate work to something else, okay. So I will not go into the very deep of it, okay. Welcome to read about it. I'll share the link over the chat, okay. We will see a delegation provided by the Jetpack Compose team, okay, which will help us
ease our work uh, by a lot margin. Okay, so instead of doing equal to, what I will do, I will do by. Okay, now मैंने जब इसको बाय दे दिया, so now I don't have to do the set things and the get things explicitly. Like जैसे मैं, मेरे को अगर वैल्यू चाहिए ही तो मैं डॉट गेट वैल्यू करता था, और मेरे को अगर वैल्यू सेट करनी थी तो मैं डॉट सेट वैल्यू करता था, राइट? बट बाय यूजिंग दिस बाय डेलीगेशन, ओके, मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वैन एवर मैंने इस स्टेट को जैसे जैसे था वैसे ही लिखा, नाउ इट इज कंज्यूमिंग द वैल्यू, ओके, एंड जब मैं इस वैल्यू के बाद इक्वल टू लगा देता हूँ, ओके, सो इट्स बेसिकली setting the value. Okay, we need to pick it out, type 1. Okay, so uh, this is just an helper way of setting and getting your states in Jetpack Compose by using this by uh, by delegate. Okay, initially मैंने ये चीज़ दिया है, I will show you. Okay, just a second. ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इनिशियली ये ऐसा था। ओके, अब जब आप इसको बाय लिखोगे ना, तो हो सकता है कि आपको एरर दिखे। ओके, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू आई एम नॉट श्योर what was in the windows. I think it was alt and enter. Okay, in my case it is option and enter. When I do option and enter, okay, I when I do it again, okay, so these two imports get added automatically. That is the set value and that is the get value. Okay, ये दोनों चीज़ आपको import करना पड़ता है in order to make this delegate work. Okay, nothing fancy, just a way of writing states in a more readable way so that we can avoid boilerplate code. But if you want, documentation में गूगल बोलती है अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देर इज़ अ नो हार्श way, no hard way of doing just by this. Okay, so uh, that was basically about state management. Okay, state management is something that whatever happen at the UI, okay, whatever data is being shown and whatever the event has been uh, given by the program or by the user, we have to maintain it. Okay, that's the whole part of Jetpack Compose, or basically front end development. Okay, the how will you maintain your state, how will you maintain your data at the UI level, the more performant and the more smooth the UI performs. Okay, so the goal of writing Jetpack Compose is to how better you understand states, how better you understand recomposition. Okay, and based on that you make your uh, appropriate changes. Okay, so this is it. Okay, now moving forward, अच्छा, हमें बाय डेलीगेट समझ में आया कि बाय डेलीगेट इस्तेमाल करने से कॉटन में हमें क्या एडवांटेज मिला। गुड, नाउ देयर कैन बी अ कंडीशन कि मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई है। ओके, विल टेक एन एग्जांपल। कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बताओ, कोई कॉम्प्लेक्स ऐप। सॉरी, हैव समबडी रेज देयर हैंड। टिकटॉक, टिकटॉक सर्च करो।
Generally, let's see the example of this thing. Okay, so Instagram हम सब लोग चलाते हैं, राइट? सो इंस्टाग्राम में जो रील वाला जो ऑप्शन है, राइट, whenever we scroll up or down, the content of the reel changes. Okay, that content includes the comments, includes the reaction over the comments, includes the reply of the comments. Okay, includes the total number of likes. Okay, and it also shows ki how many of have them bookmark it, or basically more data. Okay, even if you press the send button, the bottom sheet appears and it gives us the option कि आपको ये रील कहाँ सेंड करनी है, कि आपको अपने दोस्तों में करनी है, कि व्हाट्सएप में करनी है, कि ट्विटर में करनी है. इट गिव्स लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. ओके, so whatever thing that you see in the screen, okay, is been handled via states. ओके, एंड अगर आप सिंगल स्क्रीन में अगर आप इसको कंपोजेबल में एक एक कंपोजेबल में एक एक स्टेट बनाते जाओगे ना, इट विल गेट सो क्लमजी, सो हार्ड टू मेंटेन, दैट इट विल इनवाइट मोर बग्स एंड एरर्स. ओके, सो जनरली हम क्या करते हैं, हम वी क्रिएट अ व्यू मॉडल. ओके, नाउ व्हाट इज व्यू मॉडल? ओके, सो जनरली मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ओके, लेट्स क्लियर दिस पार्ट. Okay, so this is our screen. Okay, this is our UI. Okay, let's say we have two buttons here. Okay, the bottom sheet things. Okay, okay, let me create few more buttons. Okay, okay, let me create few more buttons here. Okay, यहाँ पे मान लो रील चल रही है. ओके, द रील इज गोइंग ऑन हियर. ओके, समथिंग. ओके, यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है. ओके, सो whatever you see in your phone is called the view. Okay, whatever the UI that you represent, which is visible to the user, it's called view and comes into the UI level. Okay, now जैसे मैं composable लिखते जाऊँगा. Okay, I create composable, let's say one, or let's say video player. Okay, नाउ इसके खुद के बहुत सारे स्टेट्स होंगे. वेल लोडिंग. ओके, वेल प्रोसेसिंग. ओके, वेल एनकोडिंग. ओके, लेट्स से n numbers of अपने पास states. Okay, this is just for the one composable. Okay, now there can be a composable for maintaining a button. Okay, let's say the send button. Okay, composable send. Okay, now it will have buttons to like well showcase, uh, bottom sheet. Okay, it will have a well enable. Okay, it will have well color. Okay, like बहुत सारे इसके states हो सकते हैं. Right, now you just imagine कि हम इस चीज़ को UI लेवल पे ही करते रह जाएंगे. It will be get so hard to create a connection between them first of all. Okay, and so hard to maintain it. Right, आपको हमेशा अपने कोड बेस से चेक करते रहना पड़ेगा, कंट्रोल लेना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, एंड लॉट्स ऑफ स्टफ. राइट, सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए देर इज़ एन आर्किटेक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गूगल. गूगल क्या बोलती है कि आप अपने यूआई को रखो. ओके, आप अपने यूआई को रखो, एक आप छोटा सा क्लास बना लो. ओके, इसको दूसरा कलर दे देते हैं. ओके, और
इसमें अब सारी स्टेट मैनेजमेंट चीज़ करो। ओके, सो जनरली हम इसको बोलते हैं व्यू मॉडल। ओके, दिस इज व्यू मॉडल। ओके, so it's a bridge between it's a bridge between मॉडल एंड अ व्यू। ओके, सो मॉडल से हम डेटा लेते हैं। ओके, मॉडल कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी इट कैन बी अ रिपोजिटरी। ओके, बेसिकली कि हमें डेटा कहाँ से आ रहा है, जैसे मान लो रील का हमें कंटेंट देखना है, राइट। रील से हमें एपीआई से हमें कंटेंट आ रहा है कि शो फेच दिस रील। ओके, दिस लिस्ट ऑफ रील्स। ओके, सो लेट्स नॉट think more about it, stress about this model। Okay, just try to understand कि this is a way of giving me a data that has to be shown over the UI। okay, now हाँ, so हमें डेटा मिला, I will get in the view model, I will process it based on my requirement, and then I will showcase it to the UI। okay, now UI में किसी ने किसी प्रोफाइल का फॉलो बटन दबा दिया, राइट। So this event will go into the view model, and the view model will then communicate to the data layer and say कि API कॉल मारो कि निकेश जैन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो किया है, प्लीज अपडेट इट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो जनरली वी डेलीगेट all those curious all those complicated management to this specific class। okay, so in the UI layer, in the activity or in the composable, we are only focus about building the UI। okay, and the state management is been delegated to the view model। तो UI क्या करता है, it consumes the state, react on the based of it, and whenever user input comes, it gives the data to the view model, and this cycle repeats। okay, so this is the theory part। let's see through an example। okay, so I will go to here, I will create a Kotlin file, name it simple view model। okay, now instead of maintaining the color state here, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ where change color flag नहीं flag। okay, of type boolean, इसको ऐसे देते हैं, of of mutable state of false। okay, like something like this। okay, अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ change color। okay, and I will give it change color flag to value equal to change color flag dot not। okay, see I am getting this uh, this warning message from the compiler and the suggestion to import things to make this error gone away। so I will import the set value, get value, and I am good to go। okay, so अब by delegates जनरली म्यूटेबल स्टेट के साथ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं रिमेंबर कॉल नहीं कर रहा हूँ, राइट। जैसे हमारे प्रीवियस में वी वर यूजिंग द रिमेंबर, apart from remember the things are same, करेक्ट, इज ऑलमोस्ट सेम। कैन एनीबडी टेल मी कि मैं यहाँ रिमेंबर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ इट स्टेट। मतलब क्योंकि स्टेट व्यू मॉडल में से चेंज नहीं हो रहा है। नो, स्टेट इज
Thus, changing in view model, the problem with the remember is, okay, the problem with the remember is, first of all, it's a composable element, right? ये किसी composable के अंदर ही कॉल हो सकता है, okay? So I cannot use it in the different class, okay? ये सिर्फ composable के लिए है। और जब हम इसे यूज करते हैं तो कोई सा भी, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 100 बॉक्स होते, 100 बॉक्स आर टेकिंग दिस स्टेट, तो वो सारे 100 के 100 बॉक्स को फोर्स करता पूरी कमांड, ओके? सो रिमेंबर comes from the composable framework and can only be used inside this annotated composable function, okay? So I will just revert it back, okay? अभी मैंने simple mutable state दिया, okay? Now what I'm gonna do, क्योंकि ये सिंपल क्लास है, आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, ओके? सो आई विल क्रिएट एन सिंपल व्यू मॉडल ऑफ टाइप सिंपल व्यू मॉडल इक्वल टू सिंपल व्यू मॉडल, ओके? मैंने यहाँ पे व्यू मॉडल बनाया, ओके? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पास द व्यू मॉडल टू हियर, ओके? सिंपल व्यू मॉडल, ओके? आई विल then take the view model like this one, okay? क्योंकि मैंने ये चीज़ बाहर बना चुकी है, मैं आई विल डिलीट दिस वन, मैं इसको डिलीट करूँगा, ओके? इंस्टेड ऑफ दिस आई विल कॉल व्यू मॉडल डॉट चेंज कलर टैग वेरिएबल, ओके? एंड इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट मैन्युअली फ्रॉम हियर, आई विल डू व्यू मॉडल डॉट चेंज कलर मैथड, ओके? तो आपने देखा, हमने यहाँ पे जितना भी कंसिस्टेंट वाला चीज़ था, जो स्टेट्स थे, मान लो यहाँ पे 4-5 और होते, राइट? उन सबको मैं इस सिंपल क्लास में ला दूँ। नाउ आई एम श्योर कि दिस स्टेट्स आर बीन मैनेज एंड बीन हैंडल बाय द व्यू मॉडल। तो मैंने अपना काम व्यू मॉडल को डेलीगेट कर दिया है, rather than making this change happen inside the internal of a composable, okay? If I run this, okay, if I change the color, you can see it is working exactly how we wanted, okay? So क्या हमें व्यू मॉडल का मतलब समझ में आया कि हम व्यू मॉडल से क्या करना चाह रहे हैं? What about others? दर्शनी, राज को 6 साल पर समझ में आ गया, ओके? दर्शनी, let me know, are you coming from an Android background? Okay, No, are you sir. able to understand it कि हम लोग कर क्या रहे हैं? Is is राज भाई, are you able to understand it कि हम चीजें क्यों डिवाइड कर रहे हैं? राज, okay, okay. Now there is one more thing that I wanted to share, okay? Okay, बहुत बड़ा हो गया, okay. Now अभी इसका कलर है रेड, ओके? अब मैं स्क्रीन को करता हूँ रोटेट, देखो मेरा कलर अपने आप ब्लू में चेंज हो गया जो इनिशियली था, ओके? अब मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर मैं अपनी स्क्रीन को चेंज करता हूँ, फिर से मेरा कलर अपने आप डिफ़ॉल्ट स्टेट में सेट हो गया, ओके? सो इन एंड्रॉइड configuration changes happen, configuration changes मतलब कि एक सेकेंड,
स्क्रीन रोटेशन, ओके, कभी भी स्क्रीन रोटेशन होता है, लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज होती है, ओके, थीम चेंज होती है, ओके, एंड वेरियस मोर कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर, ओके। तो कभी भी ये जब कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होती है ना, तो हमारा जो एक्टिविटी हमने पढ़ा था, एक्टिविटी, ओके, दैट गॉट रिक्रिएटेड अगेन, ओके। तो जब भी इनमें से कोई भी चीज़ होती है, या तो स्क्रीन रोटेशन हो, या लैंग्वेज चेंज हो, या कोई सेटिंग से जाके थीम बदल दे, जैसे अगर मैं चेंज कलर करूँ, ये तो पोपट कर दी, नहीं होगा। अगर मैं सेटिंग में जाके करता हूँ, डार्क थीम है, मैं इसको डार्क थीम कर दूँ। पहले हमारा ऐप का वो था, रेड था, मैं इसमें आऊँगा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो गया, बट इंस्टेड ही वो डिफ़ॉल्ट में सेट हो गई है, राइट। अब आप बोलोगे यार ये तो थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है। मान लो मैं चेस खेल रहा हूँ, ओके, और मैंने स्क्रीन रोटेशन वाला, ओरिएंटेशन वाला चीज़ ऑन रखा है, और मैं अचानक से अपना स्क्रीन रोटेट कर दूँ, तो मान लो मैं जीत रहा था, अचानक से रोटेट हुआ, हर चीज़ रीसेट हो गई, और गेम में हार गया, right? So we don't want to lose the state whenever a configuration changes happens, right? So जब भी ये चीज़ें होती हैं, we wanted कि we maintain it at our level, okay? So जनरली ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो और हम यूज़र को बोले नहीं भाई तेरी गलती, तूने अपने हिसाब से चीज़ें सेट की है तो मैं तो अनइंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है? फिर आपका सीईओ बोलेगा भाई मेरी भी गलती नहीं, मैं आपको ले ऑफ कर दूँगा, ओके? सो वी डोंट वांट टू डू दैट, ओके? सो इन ऑर्डर टू फिक्स दिस, गूगल वालों ने बोला है कि भाई आप व्यू मॉडल पैटर्न में जाओ, ओके? व्यू मॉडल पैटर्न में जाओ, बट इस क्लास का हम पावर बढ़ा देंगे, ओके? तो पावर कैसे बढ़ाएँगे? विल हैव अ लुक। फर्स्ट, पावर बढ़ाने के लिए पावर को करना पड़ेगा, ओके। तो मूविंग इनटू दैट, जब भी हमें एंड्रॉयड में कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या पैकेज या हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे जैसे हमारे फ्रंट एंड वगैरह में ये रहता था ना, npm इंस्टॉल लॉग लॉगआउट, ऐसे हमारे पास कमांड रहते थे ना, टू इंस्टॉल अ स्पेसिफिक पैकेज इन अवर प्रोजेक्ट, ओके। सो इन ऑर्डर टू डू दैट इन एंड्रॉयड, हमें दिस बिल्ड डॉट ग्रेडल एट द ऐप लेवल, ओके, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, ओके। अभी ये सब क्या है, इसमें ज़्यादा डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, जब हम इसका हैवी यूसेज करेंगे तब हम इसको सीखेंगे, ओके। फॉर टाइम बिंग मैंने क्या किया है, ये लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट किया है, व्यू मॉडल, जो स्पेशल व्यू मॉडल जो हमें गूगल से मिलता है, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, ओके। नाउ आई विल कम हियर एंड I will now inherit this simple view model class with the Google provided model, view model class, okay. Now the speciality of this thing is, देखते हैं क्या स्पेशल है, जो ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना, ओके। द स्पेशलिटी ऑफ दिस, जो एक्टिविटी का जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसको बाईपास कर जाता है, ओके, उससे ज़्यादा जीता है,
ओके। तो एंड ऑन डिस्ट्रॉय ये अपना ऑन क्लियर मेथड कॉल करता है। ओके, टिल दिस द व्यू मॉडल स्कोप्स रिमेन। ओके, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, दिस रिस्पेक्टिव मेथड गेट कॉल्ड अगेन, तब ये व्यू मॉडल स्कोप फिर से कॉल नहीं होता है, वो परसिस्टेंट रहता है कि हाँ भाई, मैं इस कंपोजेबल इस एक्टिविटी से अटैच्ड हूँ। आई विल रिमेन टिल देयर until the activity is completely destroyed. Okay, so uh, generally when we use view model, okay, and just by providing this like this, okay, uh, this is pretty much it what we have to do it here. Okay, मैं यहाँ आता हूँ। okay, instead of doing this, not like this, like this, यही बना लेते हैं। okay, I will do by view model। ये मेथड मेरे को जनरली इज गेटिंग कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट वी हैव इंपोर्टेड हियर। ओके, जब मैंने इस चीज़ को इंपोर्ट किया और प्रोजेक्ट को सिंक किया तो मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है। ओके, आई विल सिलेक्ट दिस वन। ओके, एंड आई विल टेल इंपोर्ट द सिंपल व्यू मॉडल। ओके, थोड़ा सा वो चाहूँगा, थोड़ा सा सिंटेक्स भूल गया मैं, एक सेकेंड। सॉरी। So view model of type simple view model by view model, okay, something like this। okay, ये भी काम नहीं कर रहा। एक सेकेंड। by view models, सर वो आप डेटा कंपोर्ट ऑप्शन ओके, जनरली बस एक एस लगाना भूल गया तो अब मेरे को सैलेज बाई डाटा। ठीक है, तो दिस व्यू मॉडल। ओके, so this is the syntax। I will define what is the name of my view model, what type it holds, and by using by this delegate method, the view model is being initialized। Okay, जनरली जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ेंगे ना, तो वी विल सी हाउ वी कैन मेक इट मोर बेटर। ओके, जनरली मेरे को वो ध्यान है, वी आई डोंट यूज इट माई लाइक वे, बट इन फ्यूचर विल सी मोर इनटू दिस। ओके, अब मैंने व्यू मॉडल प्रोवाइड कर दिया, सिंपल ये छोटा सा चेंज किया। अब मैं एमुलेटर पे लाऊंगा। ओके, कूल, मैंने चेंज कलर किया। अब मैं स्क्रीन रोटेट करूँगा। राइट, सी द मैजिक। नाउ द स्टेट हैज़ बीन persisted even the configuration changes happen। okay, so व्यू मॉडल हम लोग सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, और भी बहुत रीज़न के कारण व्यू मॉडल रिकमेंडेड रहता है कि आप अपने यूआई के साथ अटैच करो। ओके, इन दैट वे यू विल मेक इट ready, your app UI ready even at the process that configuration changes and many other scenarios। okay, so it's a good practice to create a view model, attach it to the view, and यहाँ से आप लेना देना करो अपने UI और events का। okay, तो जस्ट टू शोकेस मैं चेंज कलर किया, मैं इसको फिर से घुमाया। नाउ द कलर हैज़ बीन persisted। मैं इसको फिर से घुमाया,
द UI हैज़ बीन रीड्रॉन कम्प्लीटली, बट क्योंकि मेरा स्टेट रेदर देन UI रेदर देन व्यू मॉडल में है, तो ये चीज़ इवन द एक्टिविटी गेट रिक्रिएटेड, मेरे पास ये वैल्यू परसिस्ट, राइट। हमें व्यू मॉडल के साथ दिस ऑन क्लियर मेथड मिलता है, so make sure to clear your streams flows here, okay। तो आप कुछ ऐसा लॉन्ग रनिंग टास्क कर रहे हो और यू वांटेड टू कैंसल इट, ओके, तो आप इस ऑन क्लियर मेथड में कॉल करोगे, और जब ये व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके सारे प्रोसेस बंद हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो मेमोरी लीक्स आएंगे, ओके। ऑल्सो हमने पढ़ा था अपने पिछले उप्स कंसेप्ट में कि एवरी क्लास हैव अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ओके, init block and a secondary constructor, right। So if you wanted to populate your view model with some initial value, you can always call this init block, okay, and provide the initial value to your flags, okay, something like this, okay। जनरली ऐसे कॉल नहीं होगा, ये ऐसे होगा, चेंज कलर, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा फॉल्स, ओके, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा न्यू वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन, ओके, और रेदर देन दिस आई विल चेंज इट लाइक, ओके। तो आपका ऐसे कुछ आप ऐसे कॉल कर सकते हो, ओके। So this was about the view model, okay। I hope आप लोग को समझ में आया होगा कि why we are using view models, okay, and what advantage it gives us by default, and not only the advantage, it helps us to maintain the states as well, okay। hmm. So in our basic UI हम बहुत सारे स्टेट्स के अलावा इतने आइडियल स्टेट्स को मैनेज करते ही करते हैं कि मान लो कुछ कुछ नहीं है, अचानक से मेमोरी लॉस हो गया, वी वांटेड टू शो ब्लैंक स्टेट, मान लो हमारी एपीआई कॉल हिट हो रही है, वी वांटेड टू शो लोडिंग स्टेट, तो वी विल शो द लोडिंग स्टेट, आई विल पॉपुलेट इट द यूआई में वो स्टेट गया, एंड देन आई विल शोकेस द सर्कुलर एरिया, ठीक है। एरर स्टेट में मैं स्नैक बार या डायलॉग दिखाऊंगा कि नॉट एबल टू फैच, ओके, एंड इन द सक्सेस स्टेट आई विल शोकेस द यूआई, ओके। So that was pretty much why the view model. Please give me a thumbs up if you have understand it. If not, then you can react by this कि कुछ समझ में नहीं आया, and even by this, so that I can be aware कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, okay। Now coming to the uh, last section of today's session, it is stateful state, okay। So कभी भी आप कोड लिखो ना, तो प्लीज ऑलवेज कंसिडर कि वी कैन ऑलवेज ऑप्टिमाइज सर्टेन थिंग्स, ओके। ऐसा नहीं है कि ओवर इंजीनियरिंग कर दिए, पर ऑलवेज लुक फॉर अ ways to make things better, okay। Like if somebody is a chess player, there was a world champion who used to say, if you find a good move, find for better one, okay। So something like this, okay। अब हम अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, मान लो आपका ऐप में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें ये लेआउट बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ अ कार्ड इज एन इमेज व्यू, एंड इमेज व्यू के नीचे एक बटन है, राइट। वी वांटेड टू यूज इट एट वेरी डिफरेंट प्लेसेस, ओके। आपका ऐप बहुत बड़ा है, आपको वो चीज़ जगह जगह पे इस्तेमाल करना है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ व्यू मॉडल, ओके, हम इसको रिस्पेक्टिव आइटम्स दे देंगे विच इज डिपेंडेंट अपॉन द व्यू मॉडल, ओके। तो
तो अगर मैं यहाँ से व्यू मॉडल हटाता हूँ तो मेरे को कहाँ का एरर मिल रहा है? मेरे को यहाँ एरर मिल रहा है, यहाँ एरर मिल रहा है। ओके, सो लेट्स फिक्स। तो पहला एरर क्या है कि इसको एक बूलियन वैल्यू चाहिए। ओके, सो आई विल से करेंट कलर ब्लैक, अभी कुछ भी नाम दे देता हूँ, ऑफ टाइप बूलियन विच हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स। ओके, तो इस चीज़ को मैं ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। ओके, अब नाउ इसमें मेरे को एरर दे रहा है कि मैं फंक्शन कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हियर द लैम्डास इन द हाई ऑर्डर फंक्शन comes into the picture. On button click, which will be of type, which will return a type of view. Okay, कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं देगा, बस callback जैसे काम करेगा. So instead of this, I will make it like this. Okay, make sure to always call it. Okay, I think मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. Okay, cool. Now अब आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि दिस होल कंपोजिबल इज बिन नाउ बिकम स्टेटलेस. ओके, मतलब इसमें अब कुछ स्टेट नहीं है, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे इस प्रॉपर्टीज चेंज होगी ये कंपोजिबल रिकम्पोज करेगा और मेरा आइटम चेंज हो जाएगा. राइट, दिस नाउ डजंट कंटेन्स अ रेफरेंस टू द व्यू मॉडल एंड ये अब फ्री हो चुका है. अब इसको अब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो बाय गिविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट्स हैव अ लुक. तो मैं व्यू मॉडल यहाँ से हटा दूँगा. ओके, मैं यहाँ पे कंट्रोल की दबाऊँगा तो मेरे को करंट कलर ब्लैक मिलेगा. ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल व्यू मॉडल से वेल स्टेट चार्ट स्टेट, ओके, डॉट बूलियन वैल्यू लूँगा डॉट. ओके, इसको ऐसे कंज्यूम करूँगा. या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूँ ना, चेंज कलर ब्लैक. ओके, cool. So this gets satisfied. Now on button click I will open a lambda. देखो that click नहीं करना है. I will open a lambda. Okay, and here I will call simple view model dot change color. Now अब मैं सारा काम अपने पेरेंट लेआउट में कर रहा हूँ. माई पेरेंट लेआउट इज दिस स्कैफोल्ड. ओके, नाउ मेरा जो चेंज कंटेनर कलर वाला कंपोजिबल था, दिस हैव बीन बिकम इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ ये अपना मालिक है, इसको जो वैल्यू दूँ ये वो करेगा. राइट, नाउ इट इज़ बीन कंट्रोल फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द इनसाइड. ओके, एंड यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ कंट्रोल फ्रॉम द आउटसाइड. क्यों? अगर मैं चाहूँ तो मैं इस चेंज का और भी बना सकता हूँ, और भी जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड मैं वैल्यूज इसकी बाहर से दूँगा. ओके, जैसे मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ मेरा UI चेंज हो जाएगा. ओके, स्टेटलेस और इंडिपेंडेंट, क्या ये हमें चीज़ समझ में आई कि क्यों हम वैल्यू बाहर दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, rather than using a view model inside a composable. What about others? Cool. Okay, so the whole point is कि मेरे को अपने कंपोजिबल को जितना कम डिपेंडेंट मैं बनाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा. ओके, एंड व्हेन आई डू दिस, जब मैं ये चीज़ें करता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेट होस्टिंग. ओके, सो मैं सारे इवेंट्स को पुश टूवर्ड्स डाउन. ओके, मैं सारे स्टेट कहो या डेटा कहो, मैं सारे इसको कंपोजिबल में देता हूँ. और जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे कि
on tab, okay, on tab, on drag, okay, जितने भी इवेंट्स हैं I will push it up to the view model, okay. So जैसे मैंने बटन क्लिक किया, मैंने इस मेथड को कॉल कर दिया, राइट, एंड नाउ आई एम एबल टू यूज इट, okay. So this is called state posting, where the whole goal is to make our composable state. Okay? क्या हमें ये चीजें समझ में आई? Cool. So when we rerun it, okay, थोड़ा सा डेकोरेशन पार्ट हो गया, and now I am able to change it, okay, even from the outside, okay. So coming to the context of what we have covered till now, क्या हमें स्टेट समझ में आया? क्या हमें व्यू मॉडल समझ में आया? क्या हमें स्टेट पोस्टिंग समझ में आई? क्या हमें रिमेंबर समझ में आया? आर वी गुड टिल नाउ हियर? कूल. अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है, देन इट्स अ गुड दैट यू आर बीइंग अटेंटिव एंड आपने अपना फोकस दिया टू अंडरस्टैंड थिंग्स. जनरली दिस इज अ कॉम्प्लिकेट स्टफ, ओके, बट विद टाइम यू विल इवेंचुअली लर्न दैट कि हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ओके. विशेष, तुम्हें समझ में आया? आई एम नॉट एबल टू सी रिएक्शन फ्रॉम योर साइड. Okay, so that's pretty much from my end. अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू पिंग मी ओवर द ग्रुप, ओके. जो मैंने कल असाइनमेंट दिया था कि ट्रिपल से एक यूआई उठाओ और उसको बनाओ, अब आप उस यूआई को बना भी सकते हो और उसमें कुछ एक्शंस और कुछ इवेंट्स और स्टेट्स भी आप डाल सकते हो, राइट. अब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है. तो ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू मेक योर हैंड्स डर्टी ओवर दिस व्यू मॉडल, जेटपैक कंपोज. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, ओके. सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग योर टाइम, एंड आई होप आप कुछ बहुत सारी नई चीज़ें सीखे एंड आप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. If you have any feedback, please feel free to put it on the group or DM me personally. But that's from my end. See you on Monday. Okay? अब अपनी next class Monday रखते हैं and we gonna learn more new things from Monday on. Okay? Cool. Okay then. Have a nice weekend ahead. Bye bye everyone. See you soon. Exact same thing. Complete.